क्योंकि मुझे कंसल्टिंग करना नहीं था, बट सिंस मुझे एक्सेंचर भी पसंद आया और जॉब भी पसंद आया कि क्या करते हैं वो, तो मैंने इसीलिए लिया. So hi everyone, in today's episode we have Ishan. Ishan is a PGP finance student of second year at IMK, and Ishan has interned with Accenture Strategy. So let's hear it out from Ishan about Accenture Strategy and the role offered to him. So Accenture Strategy comes to the campus for majorly two roles. So one role is their global network, which is GN, now rebranded to GN. Previously it was CN. So another role is IMU. So IMU is short for Indian Market Unit. So where there are Indian clients for which Accenture provides consulting services in the strategy domain. And GN is basically a global network for which Accenture provides services to global clients, including Indian clients. And these consultants are basically brains for hire for these projects. So these are broadly two roles which are offered. Both are in strategy domain, although the nature of both roles can be different considering your client base. So in IMU, majorly you have to visit the client place because the roles require physical presence of the consultants and of course interns. However, in CN, mostly your work requires you to come to the office, or you can stay at your home and work for them. So it is not really location based when it comes to CN. Okay, so Ishan, अगर simple terms में हमें project explain करना हो अपने viewers को, so how would you do that? Okay, so simply saying, so the project required me to do tax automation. So tax automation क्या होता है कि यूजुअली मैन्युअली अगर टैक्स कैलकुलेट करना चाहो आप हर एक ट्रांजैक्शन में, तो गलतियाँ हो सकती है. कंसिडरिंग देर आर अमेंडमेंट्स एवरी डे और एवरी वीक, यू कैन see the amendments being notified through gazettes and through all the other sources as well. So it is very difficult for one person to track all these amendments, and amendments are basically changes in tax laws. So ऐसे जब भी करते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि आप गलत टैक्स चार्ज कर दोगे कोई भी ट्रांजैक्शन पे, मे इट बी डायरेक्ट टैक्स, मे इट बी इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज़ GST मोस्ट प्रोबेबली. तो ऑटोमेशन में होता क्या है कि आप एरर्स मिनिमाइज कर पाते हो थ्रू आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ अदर aspects of the transaction, maybe the type of goods you are procuring or type of services you are procuring, या फिर कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन, जैसे कि सैलरी होगा तो अलग से TDS कटता है, और अगर प्रोफेशनल फीस होगा तो अलग से TDS कटता है. तो इनके कुछ आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स रहते हैं. तो ये आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स सिस्टम में रहते हैं. तो ये सिस्टम से हर ट्रांजैक्शन के फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली टैक्स लगाना, दैट इज टैक्स ऑटोमेशन. सो इससे होता क्या है कि आपका मैनुअल वर्कलोड कम हो जाता है बहुत ही, so that you can have other activities you can do with those manual resources जो otherwise पूरे कंज्यूम हो जाएंगे ये टैक्स लगाने में. और ये टैक्स लगाने के बाद भी you have no guarantee कि manually calculated tax is the correct figure or not. Okay, so Ishan, it looks a very interesting project to me, but can you just explain in detail ki exactly what was your role in that tax automation part? Okay, so tax automation in itself requires in-depth expertise of the subject matter, which being CA I somewhat have. पर मैं जब भी गया था इंटर्नशिप करने के लिए, दैट वाज द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट. तो यूजुअली इम्प्लीमेंटेशन फेज में होता क्या है कि यू हैव टू मेक योर यूजर्स अवेयर अबाउट दिस टैक्स ऑटोमेशन यू आर ब्रिंगिंग इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशन, और हाउ टू यूज़ दिस टैक्स ऑटोमेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर एडवांटेज. तो क्योंकि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम रहती है विथ विच यूज़र इज़ डूइंग देयर जॉब एवरी डे. नाउ ये जो चेंज रहता है, दैट इज़ चेंज मैनेजमेंट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी. तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है बाय टेकिंग वर्कशॉप्स एंड मेकिंग योर यूज़र मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट हाउ the change process is going to be after this whole tax automation is implemented. तो उनका errors कम हो इसके लिए, और how can it be beneficial to them
कि उनका काम कितने से कम हो रहा है, लाइक कितने आवर्स लगते थे पहले और अभी कितने लगते हैं, इस बारे में भी उनको अवेयर करना पड़ता है। बिकॉज लोग चेंज को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं यूजुअली, क्योंकि उनका एक सेट तरीका रहता है कि मैं इतना देर काम करूँगा तो इतना काम हो जाएगा ना। वो चेंज जब भी होता है तभी उनको पहले वो प्रोसेस करने में टाइम लगता है, मे बी 1 महीना, मे बी 2 महीने। कुछ लोग रिफ्यूज़ ही करते हैं कि मैं चेंज ही नहीं करूँगा। तो दैट रिक्वायर्स अ डेलिकेट एफर्ट कि हम सबको एजुकेट भी करें, अवेयर भी करें, एंड सबसे अप्रूवल भी ले कि वी कैन गो अहेड विद द इम्प्लीमेंटेशन। Okay, great. So, okay, Ishan, as you mentioned about tax implications and all these things, so it seems like because of your CA background, you were allotted this project. So, other than CA, और लोग भी थे इस टीम में, या how was the allotment to the project done? या श्योर। सो जैसे एक्सेंचर में अलॉटमेंट होता है, वो ऐसे होता है कि आपको कुछ चैलेंजिंग पार्ट मिले, बट इट इज़ नॉट सो फार फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज। सो मैंने कभी टैक्स में काम नहीं किया था सच। मैं यूजुअली मेरा प्रायर वर्क के सब देखोगे तो इट वाज इन ऑडिट एंड रिस्क कंसल्टिंग। सो आई हैड नो प्रायर वर्क एक्स इन टैक्स ऑटोमेशन और टैक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। बट मेरा जो थियोरेटिकल नॉलेज था, जो सीए पढ़ते वक्त आपको पढ़ना पड़ता है, तो उसमें मुझे टैक्स का बेसिक नॉलेज था कि जीएसटी कैसे लगता है, कितना लगता है, एंड इन डेप्थ नॉलेज अबाउट हाउ जीएसटी वर्क्स, ये था। बट द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दैट एक्ट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो वो मेरा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू था कि उधर आई कुड लर्न अ लॉट अबाउट हाउ द टैक्सेस आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अपार्ट फ्रॉम मी बीइंग अ सीए, मेरे टीम में और भी लोग थे, जैसे कि जो एक्चुअल सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं, जो टेक के लोग रहते हैं। एक्सेंचर टेक करके कंपनी है जो एक्सेंचर की ही है, बट दोज गाइज ओनली प्रोवाइड टेक सोल्यूशंस। तो वो यूजुअली नॉन सीएस या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड ही रहते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज रहती है अबाउट सिस्टम्स। बट द गाय हु वाज वर्किंग in that team had also a good amount of knowledge about GST and how GST works. So that is taken care of about your knowledge base. Okay. So Ishan, given your profile, so would you like to continue working in Accenture, या फिर you would like to go for a more finance oriented role? Or secondly, how was your overall experience at Accenture as a company? Okay, so I actually wanted to end up in finance role in my internship process, but somehow since summers are very random, I ended up with consulting. And the way Accenture treated me, both culturally and both in terms of trust which they provide, even though you are an intern in the firm, was very high. So मुझे उनका कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड द रोल विच दे ऑफर्ड कि इट हैड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ लर्निंग कर्व, और उसके साथ ही द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विच दे प्रोवाइडेड टू अस टू बी बेटर एट आवर जॉब्स विच वॉज ऑल्सो वेरी हाई। सो ये सब अगर आप कंसिडर करो तो मुझे एक्सेंचर बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू वर्क विद देम इन द फ्यूचर। So even though I had this inclination towards finance, I really liked how the consulting works. So thanks a lot, Ishan. Thank you for educating our viewers with your experience. And for all our viewers, we have pinned down Ishan's LinkedIn profile. So in case you have any queries, please feel free to reach out to Ishan. Thanks a lot.